لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین پر تشریف فرما، مہاراشٹر کے دبے کچلے اقلیتوں وہ مسلمانوں کی بے باک آواز، مہاراشٹر کے مسلمانوں کی دھڑکن، مہاراشٹر کے تمام ذاتی برادری اور خاص طور سے مسلمانوں کی جان آن بان شان ابو عاصم اعظمی صاحب دائس پر موجود، آپ کا بے باک نوجوان لیڈر جس نے ماجلگاؤں کی تاریخ میں حقیقت میں عوام کے کارناموں کو انجام دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے نہ کسی نے کیا ہے جو کام مزمل پٹیل نے کیا ہے۔ دائس میں موجود تمام ہی سماجوادی پارٹی کے ذمہ داران، صدر معتمدین، حائرین اور آج کے اس جلسے میں موجود میرے نوجوانوں، بزرگوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدمات پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ ملک کے موجودہ حالات پر رکھا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام ریاستوں کے حالات، اخبارات کی سرخیاں، وہ پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر طرف تشدد، فرقہ پرستی، وہ نفرت انگیز ماحول کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر جس طریقے سے ان 4 سالوں میں نہ صرف نفرت کے ماحول کو پیدا کیا گیا، نہ صرف نفرت اپنے تشدد کے عروج پر ہے، نہ صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑوا کر یہاں کے ماحول کو فرقہ پرستی میں بدلنے کا کام کیا گیا، بلکہ اس کی آڑ میں ان فرقہ پرست پارٹیوں نے، خاص طور سے بی جے پی اور شیو سینا نے کرپشن کا کام بھی کیا ہے، اور ایسا کرپشن کیا کہ اس سے پہلے شاید راشٹروادی ہو کہ کانگریس ہو، ان لوگوں نے بھی کرپشن کیا، لیکن ان کے بھی کرپشن کو پیچھے چھوڑنے کا کام بھارتیہ جنتا پارٹی نے کیا۔ جو لوگ ستا کو اپنے قابض یا اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے وعدے اور ایجنڈے لے کر تمام ریاستوں میں عوام کے درمیان میں گھومے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جن 70 سالوں میں جن پارٹی نے دلی کے اقتدار پر راج کیا، اس پارٹی کے تمام کارناموں سے ہندوستان کی عوام عاجز آ چکی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ نریندر مودی ایک پروس کے حواریوں ایک آواز لے کر اٹھ رہے ہیں کہ 15 لاکھ دیں گے، اچھے دن رہیں گے، مکان بنا کر دیا جائے گا، کسانوں کے خرچ کو معاف کیا جائے گا، غربت کا خاتمہ ہوگا، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، اچھے دن ایسے لائیں گے کہ جن لوگوں نے کالا دھن لے کر ہندوستان کے باہر گئے ہیں ان کو پکڑ کر ہندوستان میں لایا جائے گا، اور اس کالے دھن کو بھی واپس لایا جائے گا۔ لیکن آج چند ہی مہینوں کے بعد میں پھر سے پارلیمانی انتخابات کا دور آ چکا ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے
कि करप्शन का खात्मा करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी का खात्मा होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, महंगाई का खात्मा होगा। उनके तमाम स्कीमात, उनके तमाम प्रोग्राम धरे के धरे रह गए, लेकिन उनकी सोच और उनकी फितरत जो उनके दिल में थी, फिर से एक मर्तबा फिरका परस्ती के बोल बोलकर इख्तिदार को हासिल करने के लिए फिर घूम रहे हैं। आप बतलाइए मेरे भाई, आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अपने आप को गैर महसूस अगर कोई समाज कर रहा है तो हम कर रहे हैं, दलित और मुसलमान कर रहे हैं। वो कौम आज अपने आप को गैर महसूस कर रही है। जिस कौम का सबसे ज्यादा सरमाया, चाहे नौजवानों का सरमाया हो के माल हो के दौलत हो, कि हमारे इस मुल्क के उलमाए किराम हो, सबकी कुर्बानी थी इस हिंदुस्तान पर। लेकिन सबसे ज्यादा आज हम नौकरी, घर, कारोबार, इन सबसे ज्यादा मुसलमान आज तहफ्फुज़ के लिए तरस रहा है कि हमें तहफ्फुज़ कौन फराहम करेगा। पिछली हुकूमतें भी आए तो तहफ्फुज़ फराहम नहीं किया, और मौजूदा हुकूमत का क्या कहना कि वो तो मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर, दाढ़ी टोपी के नाम पर, लौ जिहाद के नाम पर, मदरसों के नाम पर ऐसी ऐसी मॉब लिंचिंग कर रही है कि आज हिंदुस्तान का हिंदू भी अगर हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है और जब प्रेस के लोग उसके सामने पूछते हैं कि यहां पर आने की वजह क्या है, वो भी कहता है कि मैं इसलिए हिंदुस्तान को छोड़कर आया कि कहीं भी मैं मॉब लिंचिंग का निशाना ना बन जाऊं। आज अगर फिल्म एक्टर नसरुद्दीन शाह ये कह रहा है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, पता नहीं फिर आएगी क्या कर लेगी, तो तमाम तरफ से आवाजें उठ रही है कि क्या कह दिया। लेकिन आज हिंदुस्तान की हकीकत है मेरे भाई कि हिंदुस्तान जो कभी गंगा जमुनी तहजीब का गहरा था, वो हिंदुस्तान जहां पर हिंदू रमजान में आकर मुसलमानों के घर में शीर खुरमा पीते थे और मुसलमानों की दिवाली की दावत देते थे, वो हिंदुस्तान जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक बाग, एक चमन की तरह से रहते थे, आज उसी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नफरत अंगेज पैगाम देकर नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को तालीम देकर आज मुसलमानों का दुश्मन बनाया जा रहा है। इसीलिए अबू आसिम आजमी साहब बार बार कहते हैं, मैं हमेशा उनकी एक बात पर गौर किया कि मुसलमानों तुम जहां कहीं रहते हैं इस्लाम की तालीमात को आम करो, बतलाओ कि मज़हब इस्लाम की तालीमात क्या है। इस्लाम न कभी नफरत का पैगाम दिया, न क़यामत तक कभी नफरत का पैगाम दे सकता है। अरे हम तो वो हैं कि जब किसी पे जुल्म होता है तो तारीख उठाकर देखो, ऐ नादानो, ऐ मखो जो मुसलमानों को जालिम कह रहे हो, उठाकर देख लो योगी, मोदी और ठाकरे कि हिंदुस्तान की तारीख क्या है। कि जब इसी आपके सिंध के इलाके में औरतों को बंदी बना दिया गया था, कैदी बना दिया गया था, जुल्म हो रहा था, तो यही मुसलमानों ने आज जाकर वहां पर राजा दाहिर से लड़ाई लड़ी और उसके बाद उनको आजाद करा। लेकिन अफसोस है कि आज हम सबसे ज्यादा कहीं पर नाकाम हो रहे हैं तो हमारे हिंदू भाइयों के बीच में बैठकर
इस्लाम की तालीमात को पेश करने में हम कमजोर हो रहे हैं। आज मेरे भाई, हिंदुस्तान के हालात पर अगर नजर डालते हैं तो ये हालात हमको चीख चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को फिर से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बना। तमाम पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, बीजेपी भी है, सब है। लेकिन बताओ कि आज पूरे महाराष्ट्र में अगर कहीं पर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो अबू आसिम आजमी साहब ने कभी ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि ये देखा कि मजलूम है, मजलूम की ताईद में खड़े रहे, उसकी हिमायत में खड़े रहे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जब मैं कल फेसबुक पर देख रहा था कि वो लोग दान तान बक रहे हैं, अरे आज बोलने वालों, अब आसिम पर उंगलियां उठाने वालों, याद रखो, खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है कि तुम मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करोगे तो नेमत को छीन लूंगा। क़यादत एक नेमत होती है, अमानत एक नेमत होती है। आज पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी किसी जमात में था, लेकिन वहां के एमएलए को देखा, वहां के एमपी को देखा, वहां के लोगों को देखा कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दाइश पर मौजूद शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि पहले से इनकी खिदमत का मैं कायल हूं। कौन था मेरे भाई? मुंबई के फसादात में किसने मदद की? मालेगांव के बम ब्लास्ट में 50 लाख रुपए लेकर पहुंचने वाले का नाम अबू आसिम आजमी है। वहां पर जाकर वहां की ताईद के, हिमायत के, उनके आंसू को पूछा। आपके वीर का नौजवान हिमायत बेग हो या फरमानी का खाजा यूनुस हो या डॉक्टर मतीन हो, और आज से चंद माह पहले जब परभनी के 4 बच्चों को उठाया गया तो उस वक्त भी बार बार जब मैं किसी पार्टी में था तो मैंने उनके एमएलए को फोन किया कि आओ परभनी की अवाम और उन 4 बच्चों के वालिदैन, उनके घर वाले जिनके बच्चों को एटीएस ने उठाकर बम ब्लास्ट के नाम पर लेकर गया है, वो लोग तुमको देखने को तरस रहे हैं। आओ उनके कंधे पे हाथ रखो, आओ उनके आंसू को पूछो, आओ आज उनको तुम्हारी जरूरत है। जब मैंने ये तमाम चीजों को कहा और देखा बार बार फोन करने के बाद नहीं आए, तो एक फोन किया हमारे अल्ताफ साहब ने और आसिम भाई को पूरी दास्तान सुनाई कि यहां पर क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कहते हैं क़यादत, इसे कहते हैं कौम का सच्चा लीडर, नेता। अबू आसिम आजमी साहब दौड़ते हुए चले आए और उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और कहा कि बुजुर्ग आप फिक्र मत कीजिए, इसके लिए मैं आवाज उठाता हूं, हुकूमत से लड़ूंगा और लड़े भी। आज सजे सजाए ढाइश पर सिर्फ तकरीर करते हैं। आज भोले भाले मुसलमानों को जज्बाती नारों के जरिए से जज्बात में लाकर कभी अशोक चौहान से हाथ मिलाते, आपके आखिरी इलेक्शन में आप बतलाइए कि मुजम्मिल पटेल यहां के इलेक्शन में, नगर अध्यक्ष के इलेक्शन को लड़ने के काबिल थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? लेकिन क्या किया गया? वो औरंगाबाद का बोबड़ा
उसके साथ में वो जेठालाल है, दोनों और हैदराबाद के याजूज और माजूज ने मिलकर यहां की सेटिंग कर दी। जब ये नौजवान ने फोन पर बात सुनाई, कहा कि ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी से अगर हाथ मिलाने का इतना ही शौक था तो मुझको कहते, मैं पार्टी छोड़ देता। लेकिन यकीन जानो मेरे भाई, मैं उस वक्त सब्र से तहम्मुल से काम लिया। मुजम्मिल पटेल से भी कहा कि क्या करें, इन बदमाशों ने भीड़ का सौदा कर लिया है। ये बार बार बोलते ना मुसलमानों की जमात है, इसकी है, वैसी है, ऐसी है, ऐसी वैसी कुछ नहीं है। कभी इससे सौदा करते, कभी रेल अगर इनसे बड़ा मिला तो इनसे सौदा करते। ये कौम और मिल्लत की जमात नहीं है, ये कौम के सौदागरों की जमात है, याजूज और माजूज की। हकीकत तो समझो मेरे भाई, आज हालात और वक्त का तकाज़ा है कि सच्चे रहनुमा के साथ में हम खड़े रहें, सच्चे लीडर का साथ दे, हक परस्तों का साथ दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क़यादत का नाम अबू आसिम आज़मी है। आज उनके हालात कैसे हैं कि कभी कोई बिल पास हो रहा है तो कोई बिल पास हो रहा है। तलाक बिल पर सब बोले, तलाक का बिल आया आज से कुछ दिन पहले तो पार्लियामेंट में एआईडीएमके के लोग भी बोले, राष्ट्रवादी के लोग भी बोले। हमारी एक बहन बिहार की सांसद है, वो भी खड़े रही और तलाक बिल के खिलाफ में कुरान का हवाला दी, सूरह निसा का हवाला दी। बहुत लोग बोले, मुस्लिम लीग के लीडर भी बोले। लेकिन मैं जब लोकसभा की तमाम की तहारीर को देख रहा था तो 12 मिनट तक धर्मेंद्र यादव जो जीत कर आते हैं उत्तर प्रदेश से सबसे अच्छा पॉइंट टू पॉइंट स्पीकर के सामने खड़ा रहकर बार बार ये जोर दे रहे थे कि आप मुस्लिम नौजवानों पर, मुसलमानों पर और खास तौर से मुस्लिम मर्दों पर जुल्म कर रहे हैं और नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन सब बोले मेरे भाई, एआईडीएम के अजमल खान साहब बोले, मुस्लिम लीग के सलीम बेग बोले, समाजवादी के धर्मेंद्र यादव बोले, राष्ट्रवादी के सुप्रिया सोले, वो बिहार की हमारी बहन नंदिता रजन, सबने कहा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, टीवी पर किसको बताया गया, किसको बताया गया, किसको बताया गया? जिसको मोदी ने, बीजेपी ने, संघ परिवार ने कहा कि इनको हाईलाइट करना है तो हैदराबाद के याजूज और माजूज को बतलाया। फिरका परस्ती में मत आओ, इनकी जज्बाती तहारीर सुनकर इनके जज्बाती बयानों के पीछे मत दौड़ो। ये कौम के ऐसे सौदागर मुसलमानों, याद रखो कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज की तर्जुमानी आप लोग कहोगे और कहोगे कि वाकई सैयद मोइन ने सही बोल कर गया था। हालात का जायजा लो, समझे इस मुल्क की हकीकत को। हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि इस मुल्क में हम सबसे ज्यादा अक़लियत में हैं और हमको उन्हीं का साथ देना होगा जो हकीकत में इस मुल्क के सेकुलर हिंदू हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गठबंधन तैयार हुआ है जिससे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और जितनी सेना है, योगी है, विश्व हिंदू परिषद है, सबकी नींद उड़ी हुई। क्यों? क्योंकि वहां के तमाम तर समाज ने देख लिया है कि 5 साल में कितना नुकसान उनका हुआ। मैं आज इस मंच के जरिए से अबू आसिम आज़मी साहब से भी कहूंगा कि साहब, महाराष्ट्र में एक ऐसा ही हमको एसपी बीएसपी का संगठन तैयार कर हमको एक इनकलाब को बर्पा करना। हम नहीं चाहते कि हम कांग्रेस के पीछे जाए,
हमने देख लिया इधर उधर की जमातों को भी। हम बीजेपी के पीछे, शिवसेना के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। और वो ताकत आपकी क़यादत में महाराष्ट्र के गली कूचों के अंदर दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की आवाज बनकर ऐवान पार्लियामेंट तक इंशाअल्लाह ताला अगर हमको आप ताकत देंगे, काम देंगे, तो मैं वादा करता हूं 5 से 10 पार्लियामेंट के ऐसे सीट्स हैं जहां पर अक़लियतों अपना दबदबा रखते हैं और वहां की सीट्स को दहली तक पहुंचाने का काम इंशाअल्लाह यहां की अवाम करे। आखिर में आप तमाम से कहूंगा कि हम और आप अबू आसिम आज़मी साहब को सुनने के लिए आए। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी को ताकतवर बनाएं। अबू आसिम आज़मी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी का हलाल और तैयब पैसा, पसीने की खून की कमाई को हिंदुस्तान और खासतौर से महाराष्ट्र की अक़लियतों के लिए लगाई। आप साथ हो मेरे भाई, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुज़म्मिल पटेल ने एक ऐसी रैली का आगाज किया। इस रैली की ताकत को देखकर मैं खुलकर कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये ताकत यूं ही रायगा नहीं जाएगी, ये ताकत जरूर व जरूर यहां की अवाम की रंग लाएगी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।